So, hello everybody, hello dear viewers. I am back with another video, and in this video, I particularly, realized before making this video that I do have a good vocal and wit sense. That's why I can survive on this content creation, journey. In this content creation journey, I can definitely survive in this because I do have a lot of things to share, and I do have a lot of experiences, like not in professional way, but in the sense of life experiences or life lessons. I do have something really, you know uh, something really needful to say. So I definitely have many things to say. That's why I am here today with another video on this very, very, very channel of yours. So let us start. And I'm not revealing my face as for now, apart from that. So, as you have seen the thumbnail of this video, I'm going to share my experience, as you can see through my channel name, that I'm an advocate. So, I am going to share my experiences that I have actually faced or suffered or felt while my content creation, while in my, you know, code practice journey that is not really of a very huge time. I mean, अभी ही start हुई है वो journey. So as I've already mentioned in initial phase, what I have experienced, I'm going to share that to the budding lawyers, to the budding advocates. If they are really watching this video, please do give it a watch. So from where we are going to start is the kind of people you will see in that particular phase of court practice, or following this very honorable legal profession in very professional way, जो कि for sure वो पॉसिबल हो पाएगा कोर्ट जा कर के, थ्रू कोर्ट प्रैक्टिस, थ्रू लीगल प्रैक्टिस के थ्रू ही वो बेसिकली स्टार्ट हो पाएगा. सो वो चीज़ हम अगर उस पर्टिकुलर एक्सपीरियंस की बात करें, सबसे पहले आई वॉन्ट टू स्टार्ट थ्रू द काइंड ऑफ पीपल यू विल मीट देयर, सो एज वी हैव केम हियर, मतलब हम यहाँ पर आए हैं लॉ कॉलेज को सर्वाइव करके. वी हैव केम हियर आफ्टर सर्वाइविंग दैट लॉ कॉलेज फेस. सो उस फेस में भी हमें जिस तरीके के लोग मिलते हैं, एज वी आर लाइक वेरी मच अवेयर ऑफ दैट, हमें किस तरीके के लोग मिलते हैं इन लॉ कॉलेज इटसेल्फ, जो कि काफ़ी सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ प्रोन, आई मीन टू से कि सबसे ज़्यादा अपने सेल्फ गुड का देखने वाले, नो मैटर आप कितने भी ग्रेटेस्ट फ्रेंड्स क्यों ना बना लें वहाँ पर इन दैट पर्टिकुलर कॉलेज, यू विल डेफिनेटली सी सेल्फ सेंटर्ड पीपल जो कि अपना सेल्फ गुड पहले रखते हैं, नो मैटर द फ्रेंडशिप्स एंड एनीथिंग. सो उसी तरीके के सेल्फ सेंटर्ड, अपना सेल्फ गुड देखने वाले लोग आपको, वही जो लोग लॉ कॉलेज में आपको मिलते हैं, मिले होंगे या मिल रहे होंगे, वही जा कर के अल्टीमेटली कोर्ट में भी आपको मिलने वाले हैं. जो दे विल नॉट गिव अ डैम केयर अबाउट योर फ्रेंडशिप्स. दे विल जस्ट केयर अबाउट योर पर्टिकुलर about your personal achievements, about their personal achievements basically. So in that particular phase, हम ये तो भूल कर चलना पड़ेगा आपको कि people will be yours, nobody will be yours in that case, in that scenario, in that
फेज ऑफ योर प्रोफेशनल करियर, यू नो। उसके बाद जो कि आपको कोर्ट में भी मिलने वाले उसी तरीके के सेल्फ सेंटर्ड पीपल, दे विल नॉट केयर कि आप कोई भी कहीं से भी आ रहे हो या कितने भी आप कोई बडिंग लॉयर क्यों ना हो या बिल्कुल यंगस्टर क्यों ना हो, they will see you as their competitor only, nothing more than that. So I'm not going to demotivate you people here, because वो demotivation देने वाले आपको कोर्ट में या लॉ कॉलेज में बहुत सारे मिल ही चुके होंगे और आगे की जर्नी में मिलने ही वाले हैं. सो डीमोटिवेट करने वाले बहुत ज़्यादा ही मिलने वाले हैं एक्चुअली इस पर्टिकुलर प्रोफेशनल लाइन में. यू मस्ट बी लाइक रियली अवेयर ऑफ दिस. आपको इसके लिए बिल्कुल रेडी रहना पड़ेगा, बिकॉज इसी तरीके के लोग मिलने वाले हैं. वॉट आई हैव पर्सनली फेस्ड, लॉ कॉलेज में भी इसी तरीके के डीमोटिवेटिंग टाइप के ही लोग मिले थे, जो कि आपको पछाड़ना चाहते ज़्यादा से ज़्यादा और खुद आगे बढ़ना चाहते इन अ वेरी स्वीटेस्ट मैनर, बहुत ही ज़्यादा शुगर कोटेड वे में जो होते हैं, उसी तरीके के लोग यहाँ पे कोर्ट में भी मिलने वाले हैं, जो कि they will see you as their competitor only, nothing more than that. So you must be aware of that. And as they say कि selfish, self-centered and cunning people can only survive in this profession, nothing more than that. Selfish, cunning and self-centered people will only survive in this very profession. And as we do say कि ये बहुत ही honorable profession है, but no, this is a business. This is not something really a very honorable profession or something. This is particularly a business जहाँ पर वकील आपको आप जितना ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होते जाएंगे, आपको यही दिखेगा कि ही इज़ अ रियली गुड बिजनेस मैन. ही मस्ट बी अ वेरी कनिंग बिजनेस मैन टू सर्वाइव इन दिस प्रोफेशन. वो नहीं हो सकता है अगर वो बिजनेस नहीं, उस तरीके का माइंडसेट वो नहीं लेकर चल रहा है, देन डन, यू आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव इन दिस प्रोफेशन. एंड दैट इज़ अ life lesson learned. All right, up next, what I'm going to say is you have to give somewhat five years of your life to this profession very dedicatedly, committedly, constantly, and with all the consistency. And 5 years तो फिर भी मैं कम ही कह रही हूँ. Particularly you have to just devote your 10 years of your life, 10 years of your life with all the discipline, patience, good listening skills, boldness, courage, confidence, commitment and consistency. With all that consistency, you have to just devote 10 years of your life in this profession to reach to that particular level of success, कि लोग आपको पूछे. अदरवाइज कोई भी नहीं पूछने वाला है आपको यहाँ पर. नॉट इवन अ सिंगल डॉग विल गोइंग टू आस्क यू एनीथिंग इन दिस प्रोफेशन. सो you have to be bold and confident. कनिंग भी होना तो वो नेसेसिटी है, बट आई एम नॉट गोइंग टू से कि आप कनिंग बनिए. मुझे नहीं लगता कि कनिंग बनना चाहिए किसी को भी. किसी और के लिए वो एक्सपीरियंस ख़राब हो जाता है. सो आई एम नॉट गोइंग टू से टू माई बडिंग लॉयर फ्रेंड्स कि बी कनिंग इन दिस प्रोफेशन या बी सेल्फिश. नो, don't be selfish, don't be cunning, and don't just get demotivated, because I do get demotivated very easily. But I am definitely advising to my young friends ki just don't get demotivated by people surrounding you, because they are like that only. वो आपको demotivate करने के लिए ही exist करते हैं वहाँ पर. वो लोग आपको डिमोटिवेट करने के लिए ही एग्जिस्ट करते हैं. वो लोग डिमोटिवेट करने के लिए ही आते हैं, बिकॉज दे सी यू एज देयर वेरी स्ट्रॉन्ग कॉम्पिटिटर. और वो अगर आपको कॉम्पिटिटर मान रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप में डेफिनेटली कैपेबिलिटीज़ है. और उनका सामना कैसे करना है वो यू जस्ट हैव टू कॉन्फिडेंटली फेस दैम एंड कॉन्फिडेंटली आंसर दैम. दैट्स इट. विथ ऑल योर बोल्डनेस.
with all your boldness. I'm not saying कि with all your selfishness या with all your cunning type of mentality, no. I don't think so कि we need to be cunning. The thing that matters is we need to be really honest. We don't need to be cunning for anybody in that profession of like, अब clients के लिए भी cunning नहीं होना चाहिए, मुझे तो नहीं लगता कि because they come to you एज देयर लास्ट रिजॉर्ट टू गेट जस्टिस. तो मुझे नहीं लगता कि किसी के भी साथ कनिंग आपको होना चाहिए या सेल्फिशनेस के साथ किसी भी एडवोकेट या क्लाइंट के रिलेशन में पार्टिसिपेट करना चाहिए. कनिंगली बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, बट डेफिनेटली कॉन्फिडेंटली एंड करेजियसली बोल्डली हमें उन्हें फेस करना है विथ ऑल योर सेल्फ कॉन्फिडेंस. बिकॉज ओवर कॉन्फिडेंट लोग तो यहाँ पे बथेरे मिलेंगे. यहाँ पे भीड़ लगी है ओवर कॉन्फिडेंट लोगों की, जिन्हें आता जाता डेले भर का कुछ नहीं है, बट ओवर कॉन्फिडेंस उनका इतना है कि वो पता नहीं कौन सा पहाड़ तोड़ कर आए हैं वहाँ पर. जैसे लॉ नहीं करके आए, वो पता नहीं कौन सा यूपीएससी क्लियर करके वहाँ पे पहुँचे हो. इस तरीके का कॉन्फिडेंस लेकर के लोग वहाँ पर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं. सो वी डोंट हैव टू बी रियली ओवर कॉन्फिडेंट. वी जस्ट हैव टू बी optimally self-confident there. All right, and the speed of decision decision making, ये बहुत ही ज़्यादा डेफिनेटली एक चीज़ मैटर करती है वहाँ पर. कंसिस्टेंसी एंड कमिटमेंट टू द वर्क. कंसिस्टेंसी तो बना के रखोगे तभी यू कैन ओनली सर्वाइव देयर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट कमिटमेंट that is also required, like purely devotion to your work with all your honesty, because the best thing is bold people makes history. bold people ही history बना पाते हैं. bold people ही अपना नाम कमा पाते हैं. and discipline, patience, good listening skills, all this is really mandatory there. Apart from this, what I have personally, being a woman, being a female advocate there, I have personally observed that जो male advocates होते हैं, they have a sort of like over confidence तो होता ही है, ऊपर से घमंड भी बहुत ज़्यादा होता है उन लोगों को. and they see female advocates as like कि ये तो उनका field of work है ही नहीं, ये पता नहीं कहाँ से उठ के आ जाता है. सो एंड उसके अलावा आप एक आयरनी और देखेंगे कि जितनी भी जजेस आपको मिलेंगी वो सारी फीमेल जजेस मिलेंगी. सो फीमेल जजेस वो ये जाकर एक ऐसी पैट्रियार्की को स्मैश करती है वहाँ पर, और वो ये प्रूव करती है कि आप लोग सिर्फ एडवोकेट लेवल तक ही रह सकते हैं, और जजेस जो कि फीमेल जजेस वहाँ पर आप जजेस की कुर्सी पे बैठी हैं, उस पोजीशन पे बैठी हैं, वो आपको रूल कर रही हैं. सो आप मेल्स को स्पेशली जो पेट्रियार्की वाला माइंडसेट रखते हैं, उन मेल्स को रूल कर रही हैं लाइक अ क्वीन. आप देखेंगे सारी फीमेल जजेस ही आपको अधिकतर दिखेंगी. सो सच काइंड ऑफ पीपल, सच काइंड ऑफ वुमेन, लाइक ब्रेव बोल्ड वुमेन जो कि जजेस की पोजीशन पे है वहाँ पर, वो जिस तरीके से पैट्रियार्की को स्मैश करती हैं, मुझे नहीं लगता कि उससे बेहतर कुछ भी सॉर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट वहाँ पर देखने को मिलेगा. अच्छे से अच्छा बड़े से बड़ा वकील भी उनके सामने सलाम नमस्ते करके जाता है. सो दैट इज़ द काइंड ऑफ डिटर्मिनेशन एंड क्वालिटी आई हैव सीन, आई हैव ऑब्जर्व्ड, एंड आई रियली लुक अप टू दैम. दे आर लाइक सॉर्ट ऑफ द बेस्ट इन्फ्लुएंसर्स एवर. सो अपार्ट फ्रॉम दिस, मुझे नहीं लगता कि जो मेल एडवोकेट्स हैं उन्हें इस तरीके का बिहेवियर तो रखना नहीं चाहिए बिल्कुल भी फीमेल एडवोकेट्स की तरफ, जो कि ओवरली यूजलेसली स्टूपिडिटी है. वो मुझे लगता है कि बहुत ही ज़्यादा स्टूपिडिटी है, बिकॉज यू मस्ट नो कि फीमेल्स आपके लेवल की है भी नहीं. पहली बात तो दे आर बॉर्न टू रूल यू. आपको रूल करने के लिए बनी है, तभी वो सारी जजेस की पोजीशन में बैठी है, और आप एक एडवोकेट ही हो. अभी तक एडवोकेट बन के घिसा रहे हो, वो लोग जजेस की पोजीशन में बैठ के आपको रूल कर रही हैं. सो द बेस्ट वे दे आर स्मैशिंग दिस पैट्रियार्की. तो अपार्ट फ्रॉम दिस ऑल्सो वी नीड टू लर्न अबाउट we need to gain
with like sort of experience, we need to gain some effective intelligence as well. वो आएगी कैसे? वो consistently, patiently सब चीज़ों को एक्सपीरियंस करने के साथ साथ कंसिस्टेंटली स्टडी करने से भी आएगी. सो इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस अगर आप में नहीं होगी बीइंग एन एडवोकेट, तो मुझे नहीं लगता कि कुछ भी आप डिसीजन मेकिंग में कुछ भी आप कंट्रीब्यूट कर पाओगे, अपने क्लाइंट्स के लिए कुछ भी कंट्रीब्यूट कर पाओगे, बिकॉज वो इफ़ेक्टिव इंटेलिजेंस, वो रीजनिंग एबिलिटी वो होनी चाहिए. और वो डेफिनेटली कंसिस्टेंट केस रीडिंग से या केस हियरिंग से या जो भी ऑडियो वीडियो जो भी है उसके अलावा स्टडी से ही आएगी. सो आई एम नॉट हियर टू डीमोटिवेट माई बडिंग लॉयर एडवोकेट्स या फ्रेंड्स, बिल्कुल भी आई एम नॉट demotivating them, but I am definitely here to share बिल्कुल raw, real and honest experience of mine. So apart from that, you just need to be independent, you need to be bold and courageous. Thank you for watching this till here. Thank you very much. See you in the next video. All the best.